Okay, so this is lecture 26 and I am Asad Ali. Today we are going to discuss the definition and properties of Hilbert space. So last lecture में हमने वेक्टर स्पेस से स्टार्ट लिया था, एक क्विक रिवीजन था और हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की थी लीनियर वेक्टर स्पेस की, ऑर्डिनरी स्पेस वेक्टर स्पेस की, जो कि इनर प्रोडक्ट थी, ऑर्थोनॉर्मैलिटी वगैरह जो रिजल्ट्स हमने निकाले थे। इसके अलावा मैंने बताया था कि वेक्टर स्पेस लीनियर होते हैं, वेक्टर स्पेस क्लोज्ड होते हैं, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन नॉर्मली जो यूक्लिडियन स्पेस की डायमेंशन होती है वो 1 to 3 डायमेंशन तक होती है, और क्योंकि हम 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं तो इट इज़ ईजी टू विजुअलाइज 1, 2 और 3 डायमेंशनल। बट व्हेन इट कम्स टू हायर डायमेंशनल सिस्टम्स देन being human being we cannot visualize higher dimensional vector spaces. So Hilbert space is one of them, which you cannot visualize physically with your physical perception. All you can do is mathematically treat this vector space and get some physical results or get some numbers out of it, and you can interpret those numbers is from your physical insight. ठीक है, तो आप सिर्फ उन नंबर्स की इंटरप्रिटेशन करके अंडरस्टैंड कर सकते हो हिल्बर्ट स्पेस को। So as I told you earlier that Hilbert space is basically a mathematical structure and mathematical formalism which is required to understand quantum world or to understand quantum mechanics. And I just defined the definition of Hilbert space very crudely in the last lecture, but this time I am going to define each and everything sophisticatedly, sophisticated way में मैं discuss करूँगा, और I will show okay, how Hilbert space is different from ordinary Euclidean or vector space. So I will be taking the vector space, the Euclidean space in parallel with this Hilbert space in order to give you some striking similarities and differences. But still, one thing I will tell you, this vector space is not imaginable like you imagine your Euclidean vector space. ठीक है, so do not mix the things. सिर्फ आपने ये करना है कि जो एनालॉगस थिंग्स हैं, जो मिलती जुलती चीज़ें हैं, उनको जस्ट फिगर आउट करना है और देखना है कि वहाँ सिमिलरिटीज़ क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं. बट you don't have to infer any kind of result from the calculation of Hilbert space or the mathematics of Hilbert space and apply these results from Hilbert space into your ordinary Euclidean space. नहीं करना बिल्कुल भी. So let's start with Hilbert space. By analogy with the vector space, now we define the properties and basic operations for Hilbert space. ठीक है, हम मतलब ordinary जो vector space है, Euclidean space, इससे मिलती जुलती तमसील बांधेंगे Hilbert space के लिए जो सिमिलर नहीं है किसी सूरत भी. याद रखें, do not confuse the Hilbert space with your ordinary Euclidean space. These are not the same. ठीक है, although they share some properties but they are not the same. सही है. So इसका ये मतलब नहीं, इसको आप यूँ समझ लें कि अगर एक मैं क्या बोलूँ आपको, अगर स्काई ब्लू है और फर्ज करें आपने कोई शर्ट पहनी है वो भी ब्लू है, तो इसका ये मतलब नहीं है आपकी शर्ट स्काई. तो इस तरह की एग्जांपल है हिल्बर्ट स्पेस और वेक्टर स्पेस की. सो डू नॉट कंफ्यूज नहीं करना किसी सूरत भी. ठीक है, डिस्टिंक्शन होनी चाहिए प्रॉपर बाकायदा. जब भी आप हिल्बर्ट स्पेस स्टडी कर रहे हैं तो अपने दिमाग में किसी भी तरह का फतूर नहीं बनाना. ठीक है, सो बहुत फूंक के कदम रखना है और बहुत ज़्यादा बारीकी का ख्याल रखना है. these both of them are different from each other. Okay, so इसीलिए I am using the word analogy. By using the analogy with the vector space, we define the properties and basic operation on Hilbert space. First करें, remember, continuous basis कुछ इस तरह के होंगे. Continuous basis जो है functions होंगे. याद रखें, जो है infinite dimensional Hilbert space के लिए define होंगे are functions. So you better know functions looks like this, ना? Function phi of x का मतलब है phi is a function of x. So these are bases. Bases means unit vectors की तरह है ये. जैसे vectors में unit vectors होते हैं तो यहाँ bases ये हैं. ठीक है. So
आप यूं समझ लें कि एक अरे R जो कि A x कैप A I कैप प्लस B J कैप के बराबर है, तो यहाँ पे I और J क्या है, बेसिस हैं. So in analogous to this vector in 3D space, 3D Euclidean space, इसकी एनालॉजी से आप इसको यूं ले लें, psi is equal to but P and Q components की तरह तो हैं, but they belongs to complex numbers. याद रखें, आपको याद है हिल्बर्ट स्पेस में मैंने कहा था कि जो नंबर्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वेक्टर्स के. सो ये वेक्टर्स हैं, इनको हम यूनिट बेसिस भी कहेंगे, क्योंकि ये फंक्शंस है तो बेसिस फंक्शंस भी कहेंगे, और इनको एक ख़ास नाम भी कहेंगे, फंक्शनल बेसिस भी कह सकते हैं, फंक्शनल बेसिस. ठीक है. सो ये काई और फाई जो है ये फंक्शनल बेसिस है. दीज आर एनालोगस टू आई कैप एंड जे कैप, बट दे आर नॉट सेम एज आई कैप एंड जे कैप. सही है. एंड यहाँ पे ए और बी का ताल्लुक नॉर्मली रियल नंबर से होता है, बट दिस इज नॉट द केस विद कॉम्प्लेक्स वेक्टर. तो देखें हर चीज कॉम्प्लेक्स है, एंड व्हेन इट कम्स टू विजुअलाइज थिंग्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, देन इट इज far more complex and far more difficult as compared to the ordinary Cartesian coordinate system. You better know this. ठीक है. So इसीलिए आपने बिल्कुल किसी तरह की इमेजिनेशन नहीं करनी, जिनसे आपने सिमिलैरिटीज देखनी है, डिफरेंसेस देखने. ठीक हो गया. तो चलें प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं हिल्बर्ट स्पेस के अंदर और कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. Let us assume a basis function or continuous basis function. Let, this is one property number one, let phi of x be a continuous basis function which belongs to a Hilbert space, and let corresponding to this basis function or basis vector there is a number, complex number alpha which belongs to C. आपको याद है P और Q की एग्जांपल ली थी, तो मैंने फाई के साथ Q लिया था. सो यहाँ पे बेसिकली मैं प्रॉपर्टीज में लेट कर रहा हूँ कि अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक है. इसको आप यूँ समझ लें कि psi of x is equal to beta chi of x plus alpha phi of x. सो ये चीज़ phi of x एक बेसिस फंक्शन है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट बेसिस फंक्शन है, और अल्फा एक नंबर है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है. ठीक हो गया. ये एज्यूम कर लें. ठीक हो गया. तो ये कह रहा अगर इस तरह है तो देन याद रखें अल्फा से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये भी इसका भी ताल्लुक हिल्बर्ट स्पेस से ही होगा. ठीक है. ऑब्वियस सी बात है, अगर 2 का ताल्लुक रियल नंबर से है तो 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो 6 का ताल्लुक भी रियल नंबर से होगा. कुछ इस तरह की एग्जांपल यहाँ पे है कि whenever you multiply a complex number with a basis function which exists in Hilbert space, then the after product the resultant will also exist in the Hilbert space. So इसीलिए मैं क्या लिखा था, मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 अगेन मैं बता देता हूँ क्या लिखी थी. phi of x belongs to, if phi of x belongs to Hilbert space and let alpha is a number which belongs to complex number field, this is the shorthand for complex number field, then the element means हिस्सा. ठीक है. जो भी हिस्सा बनेगा मीन्स ये जो भी चीज बनेगी इसका भी ताल्लुक हिल्बर्ट स्पेस से होगा. ठीक हो गया. Remember that phi of x is used for continuous function, continuous basis, यानी infinite dimensional Hilbert space. ठीक है. This is defined. But when it comes to discrete basis, it means your dimensionality of your Hilbert space is finite. Then how you define a vector? Let's say V is a vector which has got many components, 1, V2, V3 up to Vn,
where n is less than infinity, means finite dimension, then this belongs to Hilbert space. Then इसका क्या मतलब है, अगर आप एक और नंबर ले लेते हैं, अगेन अल्फा ले लेते हैं, तो अल्फा को मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बाय वी विल बी अल्फा v1 कॉमा अल्फा v2 उसके तमाम बेसिस से मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा v3 डैश vn विल आल्सो बिलोंग्स टू हिल्बर्ट स्पेस. ठीक है, सो इससे घबराना नहीं है. सही है. दिस इज बेसिकली इज द आइडिया ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी और क्लोजनेस. ठीक है, मीन्स योर बेसिस फंक्शंस आर क्लोज इन हिल्बर्ट स्पेस. इसका ये मतलब आप मल्टीप्लाई करते हो, अगेन यू एंड अप विद अ वेक्टर विच एग्जिस्ट इन दैट हिल्बर्ट स्पेस. सो दिस इज द क्लोजनेस, क्लोजर प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी हिल्बर्ट स्पेस के बेसिस फंक्शंस की. अब हम आते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ, which is again similar, is not similar but is analogous to the properties of Cartesian coordinate systems vector. ठीक है, let's say we have continuous basis phi and psi of x, be two elements which belongs to Hilbert space. Then what? phi को प्लस करें या माइनस करें psi के साथ, whatever is the outcome must belong to Hilbert space. So ये भी Hilbert space में ही एग्जिस्ट करेगा. अगेन दिस इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. और क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा रीजन ये है कि दिस विल गिव यू अनदर वेक्टर, अनदर बेसिस वेक्टर. मैं उसको नाम दे देता हूँ chi of x. ठीक है, सो इसका मतलब है कि अगर आप किसी दो बेसिस वेक्टर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो तीसरा देता है, तो इसका मतलब है कि तीसरा आंसर अनदर कोई बेसिस वेक्टर आ रहा है. सही है. और डिस्क्रीट केस में क्या होगा, एफ v इज इक्वल टू v1 v2 vn एंड w इज इक्वल टू w1 w2 wn. देन v और w का जवाब जो है v प्लस w which is equal to v1 plus w1 comma v2 plus w2 up to vn plus wn must belong to Hilbert space. ठीक है, so this is the idea of linearity. ये basically linearity ही है एक तरह से कि आप दो बेसिस को ऐड करते हो तो तीसरा बेसिस आता है और वो भी उसी Hilbert space में ही आता है. so this is the idea of linearity. Discussing the third property or the operation in Hilbert space, I would like to recapitulate something which I just discussed in the previous lecture, which is the idea of inner product. Perhaps you have listened the last lecture, inner product. Okay, in ordinary Euclidean space or vector space, 3D vector space, there are objects called unit vectors, and they possess some property of product. Means whenever the vectors are multiplied, these unit vectors are multiplied with themselves, with itself, they gives you 1, and whenever they multiply with each other, it gives you 0. So we have defined a piecewise function for this, which is called Kronecker delta function, and this Kronecker delta function is defined as, let's say, let me define this for any arbitrary unit vectors. First करें आपके पास arbitrary vectors हैं, ei है, and ei means while changing the values of I you can create different unit vectors like e1, e2, e3. ज़रूरी नहीं है कि ये 2-3 डायमेंशन हो, यू कैन एक्सटेंड इट टू n डायमेंशंस. तो अब इनके अंदर भी e1 मल्टीप्लाई बाई e2 का जवाब 0 होगा, e1 डॉट e2 0 होगा. ऑब्वियसली दीज आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, and even whenever they are multiplied with themselves in certain with a certain product called inner product, they give you 0, sorry 1. ठीक है, and while combining these two properties of unit vectors for inner product,
in case of inner product we define I multiply I dot j equals Kronecker. वैसे मुझे यूँ नहीं लिखना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने उसको बहुत रफली लिखा था, मैं इसको बहुत प्रिसाइस लिखना चाहूँगा कि ई आई डॉट ई जे, ई आई ई जे का मतलब ये ई वन ई टू ई थ्री डैश ई एन। आपके पास n यूनिट वेक्टर्स हैं, ई वन ई टू ई थ्री अप टू ई एन, ठीक है। तो इनमें से कोई से दो लेना है, तो मैंने रैंडमली आई और जे ले लिया। अब आई और जे के मैंने दो रनिंग इंडेक्सेस लिए, डमी वेरिएबल्स लिए, डमी इंडेक्सेस लिए, इंडेक्सेस लिए, और इन डमी इंडेक्सेस को मैं रन करा के कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ प्रोडक्ट में। सो व्हेनेवर ई आई इज मल्टीप्लाइड विद ई जे it gives you Kronecker delta, and Kronecker delta is equal to 1 for same ij, means 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 nn। delta ij 1 देगा and 0 otherwise, ठीक है। i is not equal to j, तो ये आपको ये रिजल्ट देगा, ठीक है। सो ये मेरा प्रोडक्ट था। अब हिल्बर्ट स्पेस में इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है? याद रखें हिल्बर्ट स्पेस की एक खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो ये है कि उसके अंदर इनर प्रोडक्ट एक सर्टेन वे में डिफाइन होता है। कैसे डिफाइन होता है? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 3, इन एच स्पेस इनर प्रोडक्ट is defined as, अब क्योंकि डायमेंशन हिल्बर्ट स्पेस की फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकती है, तो पहले मैं इनफाइनाइट के लिए इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता हूँ। whenever you are given with two basis functions, unit vectors in infinite dimensional Hilbert space, and you are supposed to define the inner product, then inner product is written like this. Inner product को यूँ लिखा जाता है, and you have to integrate it over the integration variable which is the argument of these basis functions. So this is the definition of inner product for continuous basis, or the inner product for those systems whose dimensionality is infinite. ठीक है, so वो एक जो आंसर आएगा इसका जो भी आंसर आएगा वो एक इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, सो इसका इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, और ये इन जनरल मैंने लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिया हुआ है। अगर आपका सिस्टम रिक्वायर करता है कि आपका सिस्टम डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, फर्ज करें मैं इस तरह ले सकता हूँ, मैं एक एग्जांपल से कनेक्ट करता हूँ। सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स इन अ बॉक्स, phi of x is for particle 1 and psi of x is particle 2, and they are defined in between a region AB, और दो पार्टिकल्स एक बॉक्स में है, क्वांटम पार्टिकल्स, तो इन दोनों के पार्टिकल्स के बेसिस फंक्शन का इनर प्रोडक्ट इस तरह डिफाइंड होगा। इस तरह डिफाइन होगा। एंड अब क्योंकि लिमिट्स मैंने इन जनरल ली थी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बट दिस टाइम मैं लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट के दरमियान डिफाइन करूँगा। ठीक है, विच बिलोंग्स टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसका जो भी आंसर आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। बट दिस इज ऑल फॉर continuous basis, means whenever you are dealing with an infinite dimensional Hilbert space, then you have to define this inner product definition, this definition of inner product, not this is not for continuous discrete Hilbert space। सही है, और ये जस्ट मैं आपको चीज़ें थ्रो आउट कर रहा हूँ, आपकी तरफ थमा रहा हूँ, काइंड ऑफ थ्रस्ट कर रहा हूँ आपको मैं। बट जब हम आगे जाएंगे इस लेक्चर सीरीज़ में तो मैं डिटेल में इनकी हर एक चीज़ का मतलब और इनकी क्या कहते हैं
इनकी फिलॉसफी बताऊंगा कि वाई वी आर डिफाइनिंग द इनर प्रोडक्ट दिस वे एंड नॉट द अदर वे. ठीक है. सो बट फॉर नाउ यू हैव टू डाइजेस्ट दिस थिंग एज इट इज. एज्यूम दैट दिस इज ग्रांटेड. ठीक है कि ये आपको बस दी गई है और आपने इसको बस डाइजेस्ट करना है और एग्जाम में उल्टी करनी है. ओके. सो नाउ वी आर डिफाइनिंग inner product, which is pretty easy and simple. Product, whenever you are dealing with the finite dimensional Hilbert space, for means you are using it for discrete basis. ठीक है. हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इनको समझने के लिए. सो W और V दो वेक्टर्स हैं, बेसिस हैं इन फाइनाइट डायमेंशनल हिल्बर्ट स्पेस में. बेसिस वेक्टर्स हैं और यू आर डिफाइनिंग इनर प्रोडक्ट. तो आपने क्या करना है, पहले वाले का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना है उसके आयत कंपोनेंट का, और v के भी आयत कंपोनेंट का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को कोरस्पॉन्डिंग v के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके तमाम के तमाम को सम करना है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फॉर दिस. if v is equal to v1, v2 and v3 and W is equal to W1, W2 and W3, this is three-dimensional Hilbert space, then W multiplied by V is now defined as W1 star V1 plus W2 star V2 plus W3 star V3. This is the definition of inner product whenever you are dealing the discrete Hilbert space system, or whenever the dimensionality of Hilbert space is finite. Okay, so this is it. This is all about the inner product. So कुछ हम बारीक चीज़ें डिस्कस करेंगे अब inner product से रिलेटेड. याद रखें कि जो inner product है, inner product जो है is not a part of Hilbert space. सही है, हिल्बर्ट स्पेस का पार्ट नहीं है. एंड हिल्बर्ट स्पेस के क्या हिस्से हैं? हिल्बर्ट स्पेस इज अ सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स which are the complex amplitude corresponding to basis functions and basis function with their complex conjugate. हिल्बर्ट स्पेस के अंदर क्या क्या होता है? बेसिस फंक्शंस होते हैं बहुत सारे, उनके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होते हैं एंड इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी कॉम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो होते हैं. ठीक है. सो इन ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं हिल्बर्ट स्पेस में. ये चीज़ मौजूद नहीं होती, ये चीज़ मौजूद नहीं होती हिल्बर्ट स्पेस में. ठीक है. सो अगर ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो हाउ डज दिस एग्जिस्ट? दिस ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू H. So that is why I told you earlier that inner products are not a part of Hilbert space. So इसीलिए बुक में लिखा हुआ है inner product is not an element of Hilbert space. सही है. ओके, ये चीज़ समझ आ गई. अब कुछ चीज़ें नॉर्मलाइजेशन, हम कुछ चीज़ें डिफाइन करते हैं कि नॉर्म क्या होता है. अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसी के लिए ही सेल्फ इनर प्रोडक्ट लें. यानी फाई लें तो दिस इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ फाई स्क्वायर. इसको नॉर्म कहेंगे एंड यूजुअली रिटन लाइक दिस. ठीक है. एंड दीज आर एटलीस्ट फॉर ग्रांटेड फॉर यू, एटलीस्ट फॉर नाउ. ठीक है. ये कॉन्टिन्यूस बेसिस में नॉर्म इस तरह डिफाइन होता है. सही है. और ये दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू द लेंथ ऑफ दोज बेसिस फंक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ दोज बेसिस फंक्शन. अभी नहीं बताऊंगा बट विद टाइम मैं आपको बताऊंगा. सिंस दीज आर द डेफिनेशन एंड आई एम बाउंडेड, सो मैं आपको मजीद नहीं बता सकता. ठीक है. बट आई एम श्योर आई विल अंडरस्टैंड, digest करें. This is enough. Okay, so when you are dealing with the discrete basis,
then norm is just defined as this way. Norm of a vector v is defined as v star v. So again, v star v with ith components. If v is v comprises of many components, so vi multiplied by vi with star sign will give you the inner product definition. ठीक है, और याद रखें फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट आप जब भी कैलकुलेट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होते हैं. क्या होते हैं? पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्लीट पॉजिटिव डेफिनेट. ठीक हो गया. इनर प्रोडक्ट्स ऑफ एज इटसेल्फ, मतलब इनर प्रोडक्ट अगर आप लेते हैं एक ही फैक्टर का अपने साथ, तो इट गिव्स यू, इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव सेमी डेफिनेट. ठीक है. सो